सो हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ एक नए गेस्ट को हमारे सामने, एंड हिज नेम इज आर्यमन, एंड ही हैज क्रैक्ड ऑरेकल, और उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल मिला है। एंड उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली, क्या क्या टेक्निकल राउंड्स हुए थे या ऑनलाइन असेसमेंट में कैसे कैसे राउंड्स हुए थे, और इनका क्या कोडिंग जर्नी था, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो मैं बोलूंगा यार पूरा वीडियो को पूरे लास्ट तक देखो, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और इस वीडियो में मैं ट्राई कर रहा हूँ 500 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ। तो यार वीडियो में अगर तुम लोग अभी आ गए हो और देख रहे हो, लाइक नहीं मारे हो तो लाइक मार देना, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। सो हाय आर्यमन, हाउ आर यू, और थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दो। Yeah. Hi everyone. So my name is Arman. I'm from Lucknow originally, and I am a fourth year computer science student studying at MIT Manipal. And as Yogesh said, I just cracked Oracle. I got a internship plus placement offer in the first week of September. So I shall be joining them as an intern in the first week of January. And after interning for 6 months, I will be converted into a full-time employee. सो या दैट्स ग्रेट। तो आई थिंक ऑडियंस तुम्हें पता चल गया होगा इसके बारे में, और इसे इंटर्नशिप भी मिली है और प्लस फुल टाइम में मिला है। सो आई वांट टू नो वन मोर थिंग, दैट कि तुम्हें ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी तुम्हें कैसे मिली और ऑन या ऑफ था, ये बता दो। Okay, so on campus offer था हमारे प्लेसमेंट सीजन में थ्रू आवर प्लेसमेंट सेल वी गॉट बेसिकली अ मैसेज कि Oracle is gonna come, so उन्होंने हमें एक फॉर्म फॉरवर्ड किया एंड उसका I'll tell you the cut off and everything. The CGPA cut off was 7 and the branches allowed were all computer science branches. We have 3 computer science branches: CS, CCE and IT. Yeah. And ECE was allowed and Triple E was allowed, and the cutoff was 7. So I applied, and this is how the process started. Yeah, that's great. So can you tell me all rounds in a brief, कि मतलब क्या क्या rounds हुए थे, total rounds, फिर हम लोग explanation देंगे, एक बार brief में बता दो। Okay. So this is actually a bit different because Oracle conducted 2 OTs. Like usually एक OT होता है and then you qualify that and then you are shortlisted for interview. So basically there were 2 OTs, and if you crack both the OTs, then you are shortlisted for the interviews. And everyone who got selected, everyone had 2 technical interviews, while the third was not exactly an HR, it was a techno plus HR interview. So this was needed to get a P plus I offer. तो मतलब अराउंड 2 OTs हुए थे और 3 इंटरव्यूज हुए थे, 2 टेक्निकल और एक टेक प्लस HR का था। Your first job defines and sets the tone for your career. As a fresher, straight out of a grad school, your first job gives you the launch pad for your future career decision and choices. But do you want your job and role to be defined by the recruiters who hire you, or do you want access to the best of the companies in India and shape your career based on your skills and interests? If you want to be a maker of your own career, meet Relevel by Unacademy. They guarantee minimum package of 4 LPA for the non-tech roles and 6 LPA for the tech roles. People are getting package up to 15 LPA as well. There is no age or experience limit for the eligibility. If you are 18 plus or 40 years of age, you can attempt the Relevel test to get 50% plus hike for your next job in the best product based company. Relevel conduct the test which give you the chances to showcase your skills to the best companies in India like Cred, Grow, Upgrad, Meso, Yellow.ai and many more. So before you think this is an expensive affair, let me tell you that Relevel tests are completely free of cost. You have to give the Relevel test. You have to score more than 70% to get your Relevel profile. With this score and profile, you will win yourself the opportunity for the interviews in these top companies. Still confused about the Relevel H? With the Relevel test score and a profit, you are basically skipping the competition with hundreds of experienced resume that land up on the company's HR desk. So Relevel has been changing the lives for the month now. You can go and check Relevel Achievers Twitter handle to see all the people who have given the test to Relevel and got lots of great opportunities. So I will highly recommend you all to go and check it out. So okay, तो तुम एक बार सारे राउंड से एक ब्रीफ में बता दो, मतलब क्वेश्चन याद हो तो बता सकते हो, वरना तुम डिफिकल्टी लेवल बता सकते हो और टॉपिक बता सकते हो, ऐसा कर सकते हो। Yeah, I'll help you out. So I'll start with the first round of OT, and so basically उनके platform पे था, Oracle has its own assessment platform. We got the link and it was for 135 minutes. Okay. And the first OT was completely MCQ, and we had to सारे MCQ में there was aptitude. There were 4 sections. One was aptitude. Second was normal English, and third was technical coding assessment, which had normal data structures and everything. And fourth was basically it was related to CS theory subjects like DBMS, OOP, OS. So these were 4 sections. And इस 4 sections में भी आपके सब sections से, जैसे कि अगर English है so verbal reasoning, logical reasoning, synonyms, antonyms.
CS में there was one DBMS I remember, and there was one OS section and OOP. While in the computer science section, coding one, उसमें basically you are given a code of data structures, like linked list हो गया. और इनका favorite topic actually where I even read on GFG was AVL trees and red black trees. Yeah. And so, you know, like this section was particularly tough because if you don't know about the data structure, you can't solve them. Yeah. And the first section was aptitude. Aptitude had 37 questions. And basically aptitude was normal, probability, graphs, statistics, and permutations, and all of series finding, everything. So I would just say this was the first round, and actually this was a very tiring OT क्योंकि आपको 92 क्वेश्चंस करने हैं 135 मिनट्स में, प्लस ऑल्सो इसमें एक और कैच था कि इफ यू स्किप अ क्वेश्चन, इफ यू आंसर अ क्वेश्चन, यू कैन नॉट कम बैक ऑन टू दैट क्वेश्चन. ठीक है, तो अगर आपने एक बार अटेम्प्ट कर दिया आपका गया, एंड अगर आपने स्किप किया तो अगर आपने पूरे सेक्शन के आंसर किए तब आपको वापस इट विल कम बैक, व्हिच शो कभी होता नहीं था. सो दिस वाज टफ, एंड आई थिंक एप्टीट्यूड वाज एक्चुअली वेरी टफ. सो इसमें तो ट्रिक वाज कि जो आता है जल्दी से अटेम्प्ट करो. इफ यू आर नॉट श्योर देन यू नो जस्ट स्किप इट एंड कुछ भी एस्टिमेट लगा के आगे बढ़ जाओ. एंड आई वुड ऑल्सो से जो रेड ब्लैक ट्रीज वाला है कि एक कोड है अगर तो वो 3 क्वेश्चन में रिपीट होगा, वो बस मेन फंक्शन में ही चेंजेस कर रहे हैं एंड दे डिमांड द आउटपुट. तो कुछ नेगेटिव मार्किंग भी देगा कुछ? अच्छा, तब नो नेगेटिव मार्किंग. सो आप इसमें गेस वर्क कर सकते थे, बट आई वुड स्टिल से 92 क्वेश्चन इन 135 मिनट्स सारे तो आप नहीं कर सकते, जितने आते हैं वही एम था कि यू करेक्टेड. सो दिस वाज फर्स्ट राउंड. So after we had been told ki first round had to be on I think 29th August, and 2 दिन बाद the second round OT had to be on 1st September. Okay. So on 31st I got a mail ki you have passed the first OT. Now I was given a link for the second OT on their platform itself. This OT was very generic. There were 2 coding questions that had to be solved in 1 hour. तो ये तब भी like expected था. तो बेसिकली इन्होंने सब कुछ आपका कवर किया. इन्होंने आपका स्टार्टिंग में एमसीक्यूज भी दिए अलग ओटी में, और फिर ये था प्योरली कोडिंग बेस्ड. सो उस ओटी के लिए मैं एक्चुअली बहुत मैं फर्स्ट ओटी के लिए आई वाज नॉट श्योर होगा या नहीं, बिकॉज यू कांट एक्सपेक्ट कितने सही हुए हैं. तो जब मेरा सेकंड निकला तो आई वाज लाइक ठीक है ये कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस है. सो उसका लिंक आया, और वो ओटी एक्चुअली मैं बताता हूँ क्वेश्चंस क्या थे, मतलब किस टॉपिक से थे. पहला क्वेश्चन वाज बेसिकली 2D मैट्रिक्स, एंड उसमें रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग लगी है. एक वर्ड फाइंडिंग था, उसमें उन्होंने एक और चीज ऐड कर दी थी. तो बेसिकली अगर आपका रिकर्जन आती है तो आराम से हो जाएगा. एंड काफी लेंथी कोड था. एंड सेकंड क्वेश्चन वाज ऑफ ग्राफ जिक्स्ट्रास. अच्छा. सो इस ओटी में आई मीन क्वेश्चंस वर ऑफ मीडियम डिफिकल्टी, बट बहुत दोनों क्वेश्चन लंबे थे. जिक्स्ट्रास में भी कोड करना पड़ता है काफी. तो मुझे याद है कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था, उसमें मेरे एरर्स निकले थे, तो उसको डिबग करने के लिए आई टुक एटलीस्ट 35 मिनट्स. सो आई वाज जस्ट लेफ्ट फॉर 25 मिनट्स फॉर द सेकंड क्वेश्चन, बट लकीली सेकंड क्वेश्चन चल गया पहले ट्राई में. एंड यू नो दे डोंट इवन टेल यू द हिडन टेस्ट केसेस. उसमें बस था आपके 4 टेस्ट केस पास हुए, एंड वी वर टोल्ड कि हिडन टेस्ट केसेस वो बाद में सिस्टम देखेगा. बट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. ये हिडन टेस्ट वाला सही नहीं लगता, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि यार ये सही हुआ है कि नहीं हुआ है. Exactly. ये वाला सही नहीं लगता मेरे को. हाँ, तो एज केसेस अगर कुछ होते हैं, आई वाज लाइक हो सकते हैं, बट आई वाज प्रीटी श्योर कि मतलब चल जाना चाहिए. मैक्सिमम टेस्ट केसेस वुड पास, एंड लकीली दे डिड. सो आई फिनिश्ड दिस ओटी इन लाइक 50 मिनट्स, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आएगा इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट. सो नेक्स्ट डे उन्होंने आफ्टरनून में एक लिस्ट निकाली. दे शॉर्टलिस्टेड पीपल. They shortlisted I think 53 candidates. Okay. And they already had been shortlisted in terms of Oracle का GBU होता है, Global Business Unit. तो हमको already GBU assign किया हुआ था randomly उन लोगों ने. और मैं बताता हूँ, I think 2nd September को around 5:30 they sent us the mail, and interviews had to start the next day morning at 10. My interview was at 10:30. Okay. So this was about the OT. Okay. ठीक है. Then moving on, फिर interviews हुए. Yeah. So मैंने एक्चुअली बताता हूँ 5:30 का मुझे मेल आया था, तो मुझे पता था रफली कि मेरे पास टाइम उतना है नहीं. सो Oracle आ रहा है, सो ऑब्वियसली डेटाबेस पे एम्फेसिस ज्यादा होगा उनके इंटरव्यूज. मैंने पढ़ा था GFG पे सारे आर्काइव्स. आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ आर्काइव्स, एंड ओवर देयर आई नोटिस्ड कि SQL पूछ रहे हैं, OOP के कॉन्सेप्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं जावा के,
एंड डीएसए मैंने ज्यादा देखा नहीं बिकॉज ऑलरेडी हो चुका था, सो उसमें ज्यादा पॉइंट नहीं था देखने का. मैंने थ्योरी वापस रिवाइज की. सो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू स्टार्टेड एट लाइक द नेक्स्ट मॉर्निंग. एंड उसमें आई टेल यू, सो बेसिकली आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड बिकॉज यूजुअली होता क्या है कि उन्होंने रेज्यूमे, मुझे पता चल रहा था जो मेरा इंटरव्यूअर था अच्छे से उसने मेरी रेज्यूमे रीड की है. दे आर प्रीटी श्योर कि मुझसे क्या पूछना है. लग रहा था 10 मिनट्स लिए कम से कम रेज्यूमे एनालाइज करने के लिए, बिकॉज शी ऑलरेडी वाज टेलिंग मी आपने यहाँ इंटर्नशिप किया है, आपने ये प्रोजेक्ट किया है. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट माय इंटर्नशिप. अच्छा. या सो आई वाज लाइक ठीक है, स्टार्ट ही उससे हुआ. सो उसने पूछा आपके इंटर्नशिप में क्या था नॉर्मली, तो मैंने बताया और कि मेरा रोल क्या था. मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल था और प्रोजेक्ट मैंने किस टीम के साथ काम किया. एंड देन शी आस्क्ड मी 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट कि यू नो लाइक उसके कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया, व्हाट वाज द डिस्कशन ऑल अबाउट. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर दैट मेरी सीवी में देयर इज जावा लाइक एज अ लैंग्वेज. So she first asked me normally कि are you fine with questions in Java? I was like yes. So फिर जावा से स्टार्ट किया एंड जावा में उसने एक्चुअली मुझे बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे. आई टेल यू लाइक पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनको ओवरलोड कर सकते हो या ओवरराइड कर सकते हो, इफ यस नो व्हाई. सो उसकी रीजनिंग ठीक है. एंड देन अ वेरी जेनेरिक क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा, you know, and some questions based on multi-threading as well. Okay. So it's a very important, I would say, कि आपके resume में जो भी है you have to be sure about it because they went into the concept. ठीक है. Yeah. So इसके बाद उन्होंने पूछा मुझसे क्या कहते हैं BST और हीप के बारे में. BST के बारे में पूछा 2-3 questions and similarly about heap. And then she made me open my notepad and notepad पे उन्होंने मुझे इस बार क्या किया, उन्होंने कुछ elements बोलती गए और मुझे पहले BST कंस्ट्रक्ट करनी थी. That was easy कि उसमें तो आपको बस देखना है छोटा बड़ा क्या है बेसिकली. बट फिर उसने बोला हीप कंस्ट्रक्ट करो, मिनिमम हीप. अच्छा. और वो भी मैंने कर लिया बट उसमें हीप सॉर्ट उसने मुझे करने के लिए बोला नोटपैड पे, मतलब कि बेसिकली क्या शिफ्ट होगा कैसे. अच्छा. अब लकली मुझे ये मैंने उस टाइम पढ़ा उतना नहीं था बट मुझे थोड़ा याद था मेरे लेक्चर्स से 4th सेमेस्टर की क्या होता है, नीचे का एलिमेंट शिफ्ट होता है मिनिमम हीप में, ऊपर आता है. सो बेसिकली ये ट्रिकी पार्ट था कि हीप सॉर्ट. एंड फिर वो उसके बाद शी जस्ट हैड थोड़ा टाइम था उनके पास फर्स्ट राउंड में उतना टाइम नहीं होता, लाइक वो 25 मिनट्स का उनका फिक्स्ड होता है. सो फर्स्ट राउंड के एंड में उन्होंने मुझे एक नॉर्मल स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का क्वेश्चन दिया. इट वाज लाइक आई वुड से स्लाइडिंग विंडो गई हो गया था. सो 10 मिनट दिए और मैंने 6-7 मिनट्स में नोटपैड पे कोड कर दिया. रन नहीं कराया उसने, बस नोटपैड पे उसको आइडिया देखना था क्या है. एंड कैसे मतलब लॉजिक इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो. या कोड पूरा कोड. तो यार ये हीप शॉट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट ही होता है, मतलब बहुत लोग स्किप कर देते हैं हीप शॉट वाला कॉन्सेप्ट. उसका इंटरनल कैसे मैकेनिज्म काम कर रहा है वो पूरा मतलब आई थिंक जानना बहुत सही है बिकॉज पूछ लिए जाते हैं और बहुत लोग उसको स्किप करते हैं. तो और एक बात, जो तुम्हारे इंटेंशन के बारे में जो डिस्कशन हुआ था, क्या वो जनरल डिस्कशन था या कुछ इन डेप्थ भी पूछा गया था किसी टेक रिलेटेड? सो उतना टेक रिलेटेड नहीं था इंटर्नशिप का. उस बेसिकली मैंने उसको ये बताया था कि मैंने एक्चुअली टेक स्टैक मेंशन भी नहीं किया था, मैंने बस उसको अपना काम बताया था, प्रोजेक्ट के बारे में बताया था एंड व्हाट वाज माय रोल. सो बेसिकली उसने ऐसे क्वेश्चन पूछे कि आप स्टार्टिंग से थे, लाइक डिड यू फिनिश द टास्क, एंड बेसिकली she actually wanted to know what model of implementation we had adopted, कि agile था, you know, scrum था. So basically in terms of that it was like an overall discussion, सिर्फ normal हुआ था. नॉर्मल हुआ था. अच्छा. बट आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज राउंड के एंड में शी ऑलरेडी टोल्ड मी कि आपको सेकंड राउंड के लिए 15 मिनट्स में बुलाएंगे. अच्छा. सो आई वाज लाइक एटलीस्ट ये तो क्रॉस हो गया. एंड सो बेसिकली ओरेकल का क्या होता है, जूम में वो आपको ब्रेकआउट राउंड में डाल देते हैं, ब्रेकआउट रूम में डाल देते हैं. सो आफ्टर यू आर डन विद द इंटरव्यू आप जाते हो ब्रेकआउट वेटिंग रूम कहते हैं उसको. बेसिकली उसमें दे टेल यू आइदर यू आर सिलेक्टेड फॉर द सेकंड राउंड और यू आर रिजेक्टेड. अच्छा. सो फिर आफ्टर लाइक 15 मिनट्स ओनली आई गॉट अ, तो उनकी कोऑर्डिनेटर का आया कि वी वांट यू फॉर योर सेकंड राउंड. सो आई वाज टेकिंग टू दैट मीटिंग एंड सेकंड राउंड दे स्टार्ट नाउ दिस टाइम दे स्टार्टेड विद माय प्रोजेक्ट कि आपने प्रोजेक्ट मेंशन किया रिज्यूमे में और उसके बारे में बताओ. सो मेरा प्रोजेक्ट इन सिंपल लैंग्वेज बेसिकली मैंने असेसमेंट पोर्टल टाइप बनाया था जिसमें क्वेश्चंस आप एंटर कर सकते हो एंड स्टूडेंट्स कैन कम एंड आंसर इट. उसमें my tech stack everything was mentioned in my resume also and I also told them. So उसमें अच्छे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई. like I'll tell you कि मेरे प्रोजेक्ट में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्यों like ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है कि why this, why React, why not any other front end framework. Yeah. So
like actually मेरे साथ हुआ था, basically I had to do that project in some other framework, not exactly React. So I told them why React and why not any other framework, front end framework. So he was satisfied, and then he also asked me why not a NoSQL database. मेरा था MySQL. So उसका भी मैंने logic दिया why I did not use MongoDB, why MySQL. And then he actually understood my project very nicely. तो उसने उस पे भी cross question किया कि जो questions थे आपने randomize किए, आपने अगर randomize किए फिर कौन सा algo use किया, all of that. So अच्छी discussion हुई थी for like 9-10 minutes. उसके बाद he straight away moved on to OOP. ठीक है, OOP concept. सबसे पहले he was like what is OOP, normally concepts explain करो. So I did that, and then उसके बाद he actually फिर concept के अंदर गया वो, जैसे कि static. तो static keyword के ऊपर उसने काफी discussion किया, static functions, static classes in Java. So it was very conceptual, मतलब काफी concept based है, और वो देख रहा था कि आता है या नहीं. So ये अच्छे से हो गया, और उसके बाद वो आता है database पे. So वो expected था कि कभी ना कभी तो it's gonna come, क्योंकि Oracle का है तो होएगा ही. So I was like ठीक है. So DBMS पे वो ही starts with, तो ये बहुत हम लोग बहुत neglect कर देते हैं, हम लोग से SQL queries practice करते हैं usually. You know, उसमें this time it was about, he started with a primary key, what is primary key, what is super key, differences, and उसके बाद normalization पे question था, 3NF पे मुझसे पूछा क्या है, and how is whatever schema or anything in 3NF and not in BCNF, voice code normal form. So मैंने सब बता दिया, luckily strong point है मेरा DBMS. So after that उसने मुझे एक schema लिखवाया notepad पे, and table बता दिए, attributes बता दिए, ये हैं, and then he gave me 6 queries on that. मतलब he used to tell the query and he asked me to query लिखो notepad पे. So basically उसमें से I would say 2 easy query थी काफी, जिसमें आपको normal from where use करना है, 2 medium level query थी, एंड आई वुड से 2 जो आखिरी थी वो नेस्टेड क्वेरीज जो होती है, हमारी सब क्वेरीज होती है. एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करो टेबल में. तो पूछा गया था, आई थिंक इस सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करो, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइंड कर दे, देन ही वाज लाइक nth लार्जेस्ट कुछ भी हो तो क्या करोगे, मतलब एक जेनेरिक वो. तो लकीली आता था ऑन द स्पॉट, ये सब आपको करना है तो इट्स अ बिट टफ, यू नो, उस टाइम लगाना, बट लकीली आई हैड डन दैट. सो हो गया वो. ये एक्चुअली मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि सीक्वल, ही वाज वेरी हैप्पी कि सीक्वल अटेम्प्ट कर दिए सही से. सो उसके बाद सीक्वल खत्म होने के बाद एक कोडिंग क्वेश्चन था उसमें, एंड दैट वाज वेरी नॉर्मल. आई थिंक LIS था वो, नॉर्मल काफी. उसमें उसने नोटपैड ही खुलवाया था, बट उसने n² अप्रोच ही मांगी थी मुझसे, एंड आई थिंक वो सुनना रहा था DP के बारे में, डायनामिक प्रोग्रामिंग. सो व्हेन आई टुक द नेम ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग, ही वाज वेरी सैटिस्फाइड, समझ गया क्या आता है, एंड कि आता है. एंड आई थिंक इवन दिस राउंड वाज एक्चुअली वेरी गुड. लाइक ये लगा था कि अच्छा गया, बिकॉज कहीं पे भी फंबल नहीं हुआ, कहीं पे भी, यू नो, आई डिडंट आस्क फॉर एनी हिंट. सो दिस वाज फाइन. एंड देन उसके बाद ही वाज लाइक वी विल connect with you if you want an HR round with you, and after that I was done. So उसके बाद second round के बाद मुझे बस breakout room में डाल दिया, and I was waiting. And luckily होता क्या है, I heard कि interview start from 10:30, और वो जो process होता है वो आपका रात तक जाता है, usually 7:30 8:30 तक आप वेट करते हो 3-3 4-4 घंटे, बिकॉज इतने लोग हैं. बट लकीली आई डोंट नो इफ आई वाज फास्ट ट्रैक्ड और नॉट. मुझे HR के लिए आफ्टर 20 मिनट्स इन्होंने कनेक्ट कर दिया HR की मीटिंग. सो बेसिकली आई वांट टू से आई वाज एक्सपेक्टिंग एक जेनेरिक HR इंटरव्यू कि नॉर्मल पूछेगा बिहेवियरल क्वेश्चन अबाउट यू, अबाउट द कंपनी, ये सब हम लोग यूजुअली प्रिपेयर करके आते हैं, ठीक है, लाइक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड यू नो अबाउट योर वीकनेसेस, एवरीथिंग. But it was not like that, because start तो normal था about myself and everything. उसमें भी वो अच्छे cross questioning करता है, मतलब काफी strong HR interview था कि he was analyzing everything about my behavior, मेरा answer, you know. So HR is हर answer को आपको अच्छे से answer करना है. And after that उसने मुझे एक puzzle दिया, technical puzzle दिया था. तो ये जो puzzle था, it was सही से याद नहीं है, काफी लंबा था question, वो Zoom पे उसने दिखाया था. And he was like मैं आपको 15 minutes दे रहा हूँ, and you know आप बस एक solution निकाल के दो. It was about 2 robots, and you know they are basically, उनको उसने x और y coordinate पे खड़ा कर दिया है, and he wanted to know कि कब intersection, कुछ ऐसा कुछ था, like clearly याद नहीं मुझे. No, so I think उसमें I was starting में तो 2-3 minutes I was like थोड़ा blank कि what is he asking. तो but I think इस process में help क्या करता है, and ये मैंने पढ़ा भी है कि
you have to be very vocal. जब आपका thought process भी काफी vocal होना चाहिए. जो Yeah. आप सोच रहे हो, what you want to implement, that should be like you should बोलते रहो. मैं like I used to say कि इसमें why this, मैं क्या implement करूँगा. So कुछ किया मैंने. I was उसका एक puzzle का ऐसा आंसर है, मुझे बाद में GFG पे मिला था वो puzzle. So उसका मैंने realize किया it's a very subjective answer. Like it might be correct to you, but it might not be correct for some other person. अच्छा. So basically my interviewer was, I would say, partially satisfied in the approach. Okay. So उसमें थोड़ा मैं I was like a bit nervous कि you know he's not satisfied, मतलब maybe एक गलत बोल दिया मैंने, and doubt start हो जाते हैं interview के बीच में, self doubt and everything. So after that उसने, ये मेरा technical था. उसके बाद normally उसने मुझे tech stacks के बारे में ही normally मेरी resume देख के पूछा कि if you come to our company, what would you like to work on, and normal stuff. And that actually HR interview was 35 minutes long. अच्छा. So HR पे काफी emphasis होता है इन लोगों का. तो हम लोग सोचते हैं कि HR round आ गया, so you are selected, but that is not the case. अच्छे से you have to do it very nicely. या बहुत लोग So सोचते हैं कि HR राउंड आ गया तो मतलब हो जाएगा, बट मैं भी अब अपने एक दो फ्रेंड को देखा हूँ जो HR राउंड में भी रिजेक्ट हुए हैं. तो फिर मैं सोचता हूँ यार ऐसा कोई बात ही नहीं है, मतलब HR राउंड आया तो उसमें भी सही से निकालना होगा. Yeah, so I mean HR round means कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है first 2 rounds, but it is not a guarantee कि आपका हो जाएगा. Yeah. For engineers, for us it's like it's a formality कि you know HR round बस होना है, and आप जैसा भी परफॉर्म करो आपको they'll pick you up, but that is not the case. Yeah. So इसके बाद you know I like ये खत्म हुआ round, and फिर I think next day मुझे mail आया कि 15 candidates from my college have been selected, and I was a part of that. So very like हो गया, it was a relief. That was the entire process. So बहुत खुशी मिला होगा जब मेल आया होगा तो. Yeah, obviously it's a relief. Plus I think मेरे लिए सबसे ज़्यादा challenging होता था OTs, you know, because वो आपको आप कभी अच्छा भी करो, even then you don't get shortlisted, होता है ऐसा. Yeah. So इसमें 2 OTs थे. So और भी काफी relief था कि 2 crack किए. So it was good, I think. But I would still say Oracle का जो entire process था, that was really उन्होंने आपको अच्छे से analyze किया है, काफी conceptual गए. So really good. Yeah. So yeah, that's great. तो ये हमारा था पूरा इंटरव्यू प्रोसेस, ओटी से लेकर इंटरव्यू से लेकर सब कुछ. और चलो लास्ट एक टॉपिक पर डिस्कस कर लेते कि तुम अपना कोडिंग जर्नी थोड़ा डिस्कस कर सकते हो कि तुम कैसे स्टार्ट किए, क्या क्या तुम मतलब बेसिकली रिसोर्सेज फॉलो करते थे फॉर स्टडिंग एंड ऑल. सो या यू कैन से समथिंग ऑन दिस पार्ट. Okay, so I was like not into competitive programming starting से. Like I had friends over there, but I was not. In third year we had internships, companies coming to give you internships. So उसमें I started with CodeChef a bit. I did CodeChef a bit, but I did it for like 4 months, and after that फिर से एक gap आ गया था. But I properly started preparing for placements, I would say in April or May of this year. I had like 3-4 months. And उसमें what I did was I realized कि I had enough practice of, I would say, CP. I was not very good at it, but I actually focused a lot on DSA because I had got to know this from seniors कि आपका DSA जो होता है वो मतलब अगर आपका DSA में आप important questions कर लो हर topic के, so आपको एक hang आ जाएगा, मतलब you can figure out कि क्या चल रहा है code में. So basically मैंने GFG और LeetCode, GFG practice and LeetCode ये दोनों चीजें मतलब काफी की थी. And 4 months में I was also doing an internship side by side, and I was practicing coding. But what I ensured, and I would like to know, like basically this helps a lot, and I also got a lot of help, was don't get stuck on one topic. जैसे कि अगर आप arrays कर रहे हो, फिर आप important type सारे type की questions कर लो, right? Strings कर रहे हो same, but keep moving on. जैसे कि I have seen people who, like if they are doing something like dynamic programming, they give 2 or 3 months to it because it's obviously a bit tough. But ऐसा नहीं है, आप करो, important questions करो, but उस पर like just don't get stick to उस तक ही ना रहो, आगे बढ़ो, थोड़ा backtracking कर लो, या you know सारे topics एक बार cover कर लो, and time to time आप revise कर लो. I think this was very helpful. And one more thing I did was I used to note down sometimes एक important question का कोई concept है, so basically मैं उसको कहीं लिख लेता था because ताकि बाद में अगर मैं उसको पढ़ूं तो मुझे basically पता हो कि ऐसा question आया, so what to expect from it. So this was a bit of it, and this was my coding journey. But I would say कि मेरा DSA का like college में when I used to code and everything, my concepts are pretty good startings. So for example, if I'll tell you like अगर आपने trees तक किया और आपका trees is very good, so फिर जब आप graph करोगे आपको उतना problem नहीं आएगा.
बिकॉज सॉर्ट ऑफ थोड़ा बहुत लिंक्ड है ना, कि मतलब अगर आपका ट्रीज का कॉन्सेप्ट अच्छा, आपको डीएफएस बीएफएस पहले से आता है, सो इट वोंट बी अ दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम. सो दिस वाज व्हाट आई फॉलोड. आई थिंक मेरा जितना मैंने स्टैक्स यूज, ट्रीज, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स काफी अच्छे से किए थे. सो दिस हेल्प्ड मी. एंड आई वुड जस्ट से एक चीज की प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि स्टे इन टच. ये नहीं कि रोज रोज आपको बहुत सवाल करने, बट like just make it a point कि every week you are, you know, you are in touch and you are seeing new questions. I think that really helps a lot. तो बीच में मतलब गैप वगैरह नहीं लाना, जैसे कि अगर तुम कोई एक हफ्ता कर रहे हो फिर 2 हफ्ते का गैप आ गया, वैसा सीन अगर होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी मतलब. Exactly. या तो बहुत सही था यार तुम्हारा पूरा जर्नी, एंड इट वाज रियली ग्रेट. तो एक लास्ट तुम कुछ टिप्स देना चाहोगे हमारे ऑडियंस के संग कि क्या मतलब उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, मतलब लास्ट तुम्हें जो लगता है, जो लास्ट तुम शेयर कर सकते हो हमारे ऑडियंस के साथ? Yeah, definitely. I mean, first thing, I even said this before, कि competitive programming is definitely, I would say, important, कि इससे आपकी problem solving help होती है. Basically, उसका aim यही है कि आपकी problem solving skills help होती हैं. So, but it does not mean if you are not good at CP, you can't crack any OT. ऐसा नहीं है. If you are good at DSA, ये लोग बहुत neglect करते हैं. अगर आप DSA भी अच्छे से कर लो, I would say आपका like you will be able to crack like majority of the OTs हो जाएगा. It will also help you in the interview, because interviews में सिर्फ DSA होगा. There won't be any CP, जितना मैंने देखा है, right? So CP अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो, CP कर लो. I did not do this, तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था. एंड जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो तो कर लो, बिकॉज लेट करोगे तो प्रेशर बिल्डअप होगा. बट अगर आप थर्ड या फोर्थ ईयर में हो, देन इवन DSA कैन हेल्प यू आउट थोड़ा बहुत. सो यूटिलाइज साइट्स लाइक GFG, LeetCode. एंड सेकेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग CS थ्योरी सब्जेक्ट्स जो होते हैं, DBMS, OS, even CN, we think it's only important for interviews. But even in my Oracle OT, you see, अब क्या हो गया, all companies always have MCQs, right? They have 1 or 2 coding questions. Along with that, they have MCQs on various topics. So if you don't know about this, if you don't practice, then आपका OT में आपको problem होगा. बहुत कम कंपनीज है इन, लाइक मेरे कॉलेज में भी जो आई थी, जिनका सिर्फ प्योरली कोड बेस्ड OT होता है, जिनके दोनों कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, राइट? लाइक सिर्फ कोडिंग होती है आजकल. लाइक बेसिकली मैंने जितना देखा है कि MCQs पे ज्यादा फोकस है. और एक और चीज, आपका कोडिंग सब लोग कर लेते हैं, कभी कभी इजी क्वेश्चन आएगा तो सब कर लेंगे, फिर जो टाई ब्रेकर होगा जिससे आपका डिसाइड होगा, वो MCQs पे आ जाएगा कि कौन आगे जाएगा. सो उसका CS थ्योरी सब्जेक्ट्स आई वुड से जस्ट 2 महीने लगेंगे या 1 महीना लगेगा अगर थोड़ा बहुत कर लो. तो please do that, don't neglect that. Like it is very very important. Like even this I realized late कि you know ये भी बहुत weightage hold करता है सिर्फ coding में. And third, about I have like ये मेरा भी एक doubt था कि skill set जो लोग कहते हैं resume में क्या डालें. I would say अगर आप if you are into app dev, if you are into web dev, या आप कोई भी skill है तो उसी skill से stick करो. ये नहीं कि आपने app dev भी किया, आपने ML भी कर लिया, you know आप सब कुछ कर रहे हो and आपके प्रोजेक्ट्स भी सब पे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. बट यूजुअली दे एक ही स्किल पकड़ के उसमें जस्ट मास्टर दैट. सो आई थिंक ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इंटरव्यूज में जस्ट बी काम, कि इंटरव्यूज में काम होना, पैनिक ना करना. बिकॉज कभी कभी होता है आपका जो आंसर होता है, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट. आपको क्वेश्चन कभी ट्रिकी आ जाएगा, ठीक है. कभी कभी वो आपसे एक LeetCode एडवांस पूछ देंगे, सो उसमें आपका obviously you won't be able to get the right solution, but you have to be very calm. And interviews don't expect you कि you know आपका code fully run करे, they just want to see the thought process. So be vocal about that in the interview. I think this is it, and it's all about like all this, and I think this will be enough. Sure. I think audience आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा पूरा प्रोसेस के बारे में, क्या क्या पार्ट इन्होंने फॉलो करा और एवरीथिंग, राइट? सो इतना ही है आज के वीडियो के लिए, और आई थिंक मजा आया होगा वीडियो देखकर. तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो. चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए पॉडकास्ट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.